الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فاعلم انہ لا الہ الا اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معاذ لا تشرک باللہ ان قتلت او حرقت او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ احباب ذی احتشام، آپ احباب سے کوئی مالی تعاون مقصود نہیں ہے، ہم لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، ایک پیغام لے کے آئے ہیں کہ کائنات کے لوگوں، اگر اس کائنات میں عزت چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین تمہیں وقار کی زندگی عطا فرمائے، اگر دلوں میں یہ تڑپ ہے کہ اللہ ہمارے دلوں میں سکون پیدا فرمائے، اگر یہ تمنا ہے کہ اولاد فرما بردار ہو، اگر یہ تمنا ہے کہ اللہ ہمارے مال میں برکت فرمائے، تو جان لیجئے اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ توحید اس چیز کا نام نہیں کہ اللہ کو الہ مانا جائے، توحید اس چیز کا نام ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور حاجت روا نہیں ہے۔ خالی اللہ کو ماننا، خالی اللہ رب العالمین کے نعرے لگانا اور اللہ کے ساتھ غیروں کو بھی شامل کرنا، یہ توحید نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے، رب کعبہ کی قسم ہے، ایسے لوگ جو اللہ رب العالمین کو چھوڑ کے غیروں سے جا کے اپنی مرادیں پوری کرواتے ہیں، محبوب کائنات نے فرمایا دنیا کائنات کے لوگوں جو اللہ کو راضی کر لے، اللہ لوگوں کو اس سے راضی کر دیتا ہے، اور جو کائنات کے لوگوں کے در پہ جا کے انہیں راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، آقا فرماتے ہیں کائنات میں ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ عزیز بھائیوں، آئیے توحید کو سمجھیے، یہ توحید اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، کائنات کے رب کی قسم ہے۔ وہ بد نصیب انسان ہے، وہ بد نصیب انسان ہے جس نے اللہ رب العالمین کو نہیں پہچانا، جس نے اپنے مالک کی قدر نہیں کی۔ کون اللہ رب العالمین ہے؟ وہ رب ہم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ محبوب کل کائنات نے بیان فرمایا، کائنات کے لوگوں، اللہ نے محبت کے 100 درجے بنائے ہیں، اور ان 100 میں سے 99 درجے اللہ نے اپنے پاس رکھے۔ آقا فرماتے اللہ نے ایک درجہ زمین کے اوپر بھیجا ہے، اس ایک درجے کی وجہ سے ماں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے، باپ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، رشتہ داروں میں محبت ہے، اساتذہ شاگردوں میں محبت ہے، ہمسایوں میں محبت ہے۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، یہ ایک درجہ ہے جس کی وجہ سے ماں بچوں پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ یارو کبھی غور کرو، جس رب کو مانتے ہو، رب کے پاس 99 درجے ہیں، وہ تم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ وہ اللہ تو کہتا ہے، اگر کوئی مجھے ایک بار کہے یا اللہ، اللہ 10 بار کہتے ہیں لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، میرے بندے تیرے پکارنے میں دیر ہے، تیرے رب کے دینے میں دیر نہیں۔ اور ہمارے محبوب پیغمبر نے فرمایا تھا، کائنات کے لوگوں، اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر یہ پوری کائنات اللہ سے ایک مرتبہ سوال کر لے، اللہ تمام لوگوں کی مرادیں پوری کر دے، تمہارے رب کے خزانوں میں اتنی کمی نہیں آ سکتی جتنی ایک سمندر سے پانی کا قطرہ لے، اتنی کمی بھی اللہ کے خزانوں میں نہیں آ سکتی۔ وہ اللہ کون ہے؟ وہ اللہ رب العالمین ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے۔ عزیز بھائیوں، اللہ کی قسم ہے، جو اللہ رب العالمین کا ہو جائے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے، اللہ رب العالمین اس بندے کو کافی ہو جاتے ہیں۔ اور محبوب نے فرمایا تھا کائنات کے لوگوں یاد رکھنا
जो कौम अल्लाह के साथ किया हुआ वादा तोड़ दे, जो कौम अल्लाह के साथ किया हुआ आहद तोड़ दे, आका फरमाते हैं ऐसी कौम को अल्लाह जलील और रुसवा करके रख देता है। ऐसी कौम के माल से अल्लाह बरकत उठा लेता है। ऐसी कौम के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन कहत साली को नाजिल कर देते हैं। ऐसी कौम में अल्लाह रब्बुल आलमीन जालिम किस्म के हुक्मरान पैदा कर देते हैं। ऐसी कौम को अल्लाह अगियार का मुसल्लत कर देता है। जो कौम अल्लाह के साथ किया हुआ वादा तोड़े, रब के साथ किया हुआ वादा किया था, मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं। नमाज में हम कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हाजत रवा भी तू है, अल्लाह मुश्किल कुशा भी तू है, अल्लाह बिगड़ी बनाने वाला भी तू है, अल्लाह औलाद देने वाला भी तू है, अल्लाह रिज़्क़ का मालिक भी तू है, अल्लाह जान का मालिक भी तू है। नमाज के बाद जैसे बाजार में आए ठोकर लगे, या अली मदद, या रसूल मदद, रब्बे काबा की कसम है जो ऐसा बेवफा हो, जो ऐसा आहद तोड़ने वाला हो, अल्लाह ऐसे बंदों को पसंद नहीं करते। अल्लाह कहत साली ऐसी कौम पे नाजिल कर दे। यारों कितने दुख की बात है, कितने दुख की बात है। जिस मुल्क को ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे लिया था, जिस मुल्क के लिए लाखों जानें कुर्बान की गई, जिस मुल्क को हासिल करने के लिए हमारी माँ बहनों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया, जिस मुल्क को हासिल करने के लिए माँ के सामने दूध पीते बच्चों को मार दिया गया, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे ये मुल्क लिया। आज दुख की बात ये है, आज जुल्म ये है कि इस मुल्क पे इतने अल्लाह के घर नहीं जितने शिरक के अड्डे बना दिए गए, और फिर भी हम अल्लाह की रहमत की उम्मीद करते हैं। आओ मेरे भाइयों, अगर दिलों में सुकून चाहते हो, अगर इस जिंदगी में वकार चाहते हो, अगर इस जिंदगी में इत्मीनान चाहते हो, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के बन जाओ। रब के सामने अपने सर को झुकाओ, अल्लाह के सामने अपने सर को झुकाओ। मन तवाज़अ लिल्लाहि रफ़अ अल्लाहु लहू, जो अल्लाह के सामने झुकता है, अल्लाह की कसम है, जो अपनी जबीन को रब के सामने झुकाए, अल्लाह गैरों के सामने झुकने की नौबत नहीं आने देते। अल्लाह लोगों का मोहताज होने नहीं देते। अल्लाह दिलों में सुकून पैदा कर देते हैं। अल्लाह माल में बरकत नाजिल कर देते हैं। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, रब्बे काबा की कसम है, सहाबा तो सहाबा, सहाबियात ने भी तौहीद की खातिर तन मन धन कुर्बान कर दिया। इस्लाम के लिए अगर सबसे पहले किसी ने कुर्बानी दी, वो एक औरत ने कुर्बानी दी। इस्लाम को कबूल भी सबसे पहले औरत ने किया था। ख़वातीन का भी इस्लाम में किरदार है। माजी सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जालिम कहता है सुमैया अल्लाह का दीन छोड़ दे, सुमैया अल्लाह के अलावा औरों को भी इलाह मान, सुमैया अल्लाह के अलावा गैरों को भी इलाह मान। माजी सुमैया कहती हैं नहीं, अल्लाह की कसम है, जान की कुर्बानी दे सकती हूँ लेकिन मोहम्मद अरबी का दीन नहीं छोड़ सकती, ला इलाहा इल्लल्लाह से गद्दारी नहीं कर सकती। रब्बे काबा की कसम है, चश्मे फलक ने ये मंजर देखा, जालिमों ने सुमैया के जिस्म के 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन उस सहाबिया की अजमत पे कुर्बान जाऊं, उस सहाबिया ने आखिरी वक्त भी अल्लाह की तौहीद का डंका बजाया। वो सहाबाए किराम, हमारे असलाफ महबूबे कायनात ने ताइफ की वादी में जाके पत्थर क्यों खाए? महबूबे कायनात के ऊपर ओजड़ी रखी गई, किस लिए? क्योंकि आका दावत देते थे ला इलाहा इल्लल्लाह। कायनात के लोगों, ये लात मनात हुबल हुज़्ज़ा ये कुछ भी नहीं कर सकते। हर चीज का मालिक, रिज़्क़ का मालिक, औलाद का मालिक, हर चीज का मालिक अगर है तो वो कायनात का रब है, अल्लाह रब्बुल आलमीन है। यही दावत महबूब ने इस कायनात के लोगों को दी। फरमाया लोगों कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू तमलिकुल अरब वल अजम। फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह से वफा करो, ला इलाहा इल्लल्लाह को मानो, इस कलमे के ऊपर अपनी जिंदगी बसर करो। आका फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन कामयाबियों से हमकिनार कर दे। आखिरी बात है, इस ला इलाहा इल्लल्लाह की अहमियत क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह की फजीलत क्या है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह के सामने एक बंदा पेश किया जाएगा,
गुनाहों के अंबार होंगे, पहाड़ों से भी बड़े गुनाह होंगे। आका फरमाते 99 रजिस्टर इसके गुनाहों के होंगे। आज मैं भी गुनाहगार हूँ, हर बंदा गुनाहगार है, लेकिन देखिए ना, जिन लोगों ने तौहीद को अपनाया, तौहीद से मोहब्बत की, आका फरमाते गुनाह बहुत होंगे, अल्लाह के सामने पेश होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन देखेंगे, इसके 99 रजिस्टर होंगे। फरिश्तों को कहा जाएगा इसकी कोई नेकी तलाश करो, ढूंढा जाएगा, एक पर्ची मिलेगी जिसके ऊपर लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह। जिंदगी में गुनाह तो किए हैं लेकिन कभी शिरक नहीं किया, शिरक की नजासत से अपने आप को पाक किया, अल्लाह के अलावा किसी और के सामने नहीं झुका, अल्लाह के अलावा किसी और को इलाह नहीं माना, रब की सिफात रब के बंदों में तकसीम नहीं की। आका फरमाते अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएंगे आज इंसाफ होगा, ये सोचेगा कि मेरे जैसा गुनाहगार ही कोई नहीं, कहाँ 99 रजिस्टर और कहाँ ये एक पर्ची। ये पर्ची क्या कर सकती है? आका फरमाते एक पलड़े में 99 रजिस्टर रखे जाएंगे और एक पलड़े में अल्लाह रब्बुल आलमीन इस पर्ची को रखेंगे। फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह की इतनी फजीलत है, ये पलड़ा जमीन की तरफ झुकेगा, गुनाहों वाला पलड़ा आसमान की तरफ झुकेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसे जन्नत का वारिस बना देगा। और फरमाया लोगों याद रखो, याद रखो, ये जहन्नम इतनी सख्त है। महबूब ने फरमाया जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐलान करेंगे कि मेरे फरिश्तों, जिन लोगों के दिलों में ला इलाहा इल्लल्लाह मौजूद है, जिनके दिलों में राई के दाने के बराबर भी तौहीद मौजूद है, अल्लाह फरमाएंगे इन्हें जहन्नम से निकाल के जन्नत में दाखिल किया जाए। आका फरमाते इतने लम्हे में ये जो जहन्नुम में लोग गए थे सड़ के कोयला हो जाएंगे। यारों कभी गौर किया है, ये अल्लाह ने जिंदगी दी है, 5-6 फुट का वजूद दिया है, इस 5-6 फुट के वजूद के ऊपर उसने अपनी कुदरत की कारीगरी दिखाई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेशुमार नेमतें दी हैं, पाँव जैसी नेमत दी है, जुबान जैसी नेमत दी है, आंखों जैसी नेमत दी है, सर जैसी नेमत दी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेशुमार नेमतें दी हैं। कभी गौर किया है हमने इन नेमतों के बदले में क्या दिया? हमने अपने रब को कितना मांगा? मैं अल्लाह से कितना मांगता हूँ? क्या मैंने अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत का हक अदा किया है? क्या मेरे दिल में अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत मौजूद है? आइए, ये वक्त है, अल्लाह ने जिंदगी दी है, मोहलत दी है, मौका दिया है, अपने रब की तरफ आ जाओ, अपने रब से ताल्लुक जोड़ लो। ये ना हो कि कल मेरा भी किसी मस्जिद में ऐलान हो कि फलां का बेटा, फलां का भाई, फलां इस दुनिया से चला गया और इस दुनिया से जाने से पहले हमें तौबा की तौफीक न मिले, इस दुनिया से जाने से पहले मैं भी अल्लाह की सिफात गैरों में तकसीम करता रहा। तो बताओ, अल्लाह की कसम है, एक लम्हे के लिए सोचना, रब के बंदे रब का दिया खा के, अल्लाह की नेमतें इस्तेमाल करके, अल्लाह की जमीन पे रह के गैरों की इबादत करते रहे, कल क़यामत का दिन होगा, रब के सामने कौन सा चेहरा लेके पेश होगे? क्या अल्लाह के सामने खड़े होगे? क्या रब का सामना करोगे? जब उस रब ने इतना पूछ लिया कि मैंने जिंदगी दी थी, नेमतें दी थी, मेरी नेमतें खा के गैरों की इबादत करता रहा, क्या पल्ले रह जाएगा? क्या कमाया इस जिंदगी में? क्या किया इस जिंदगी में? अगर अल्लाह को ना माना, अल्लाह की तौहीद को ना माना, याद रखो अगर तौहीद नहीं तो कुछ भी नहीं, तौहीद ही नहीं तो अल्लाह जिंदगी के अमाल तबाह बर्बाद कर देगा। फरमाया मा काना लिल मुशरिकीना अन यामुरु मसाजिद अल्लाह, अगर दिल में तौहीद नहीं, बैतुल्लाह की भी तामीर की जाए, अल्लाह फरमाते महबूब जी इन मुशरिकीन से कह दे इनकी ये नेकी भी अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं। क्यों? ये अल्लाह को नहीं मानते। अगर अल्लाह को मानोगे, अल्लाह तुम्हारी इबादत भी कबूल करेगा, अल्लाह तुम्हारी नेकियों को कबूल करेगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमारे दिलों में तौहीद की मोहब्बत पैदा फरमाए, अल्लाह जिंदा रखे, इस्लाम पे रखे, मौत दे, ईमान के ऊपर मौत दे, शहादत की मौत नसीब फरमाए। आज इंशाअल्लाह रहमान बाद नमाज मगरिब जामे मस्जिद उस्मान गली नंबर 11 ए एरिया में एक तबलीगी और इस्लाही दर्स कुरान होगा। तमाम अहबाब से मुअद्दबाना
التماس ہے کہ اپنے اوقات میں سے اللہ کے لیے وقت نکالیں. اللہ نے موقع دیا ہے تو اللہ کے دین کو سنیں, محبت کریں. وما توفیقی الا باللہ.